Hi everybody, welcome back to today's The Hindu Important News Analysis. As you know, today date is 23rd July 2024. So I'm going to discuss important article how and when can a bill be defined as a money bill. So this article is important for your both prelims as well as for mains exam. Okay, in prelims exam, definitely there will be a question from money bill. Okay, what are the special procedure given in our constitution for money bill? Which of the following come under the money bill? Which type of bill is called as money bill? Okay, what special power is given to Lok Sabha as compared to Raj Sabha regarding money bill, and the power and function of a speaker with respect to money bill? So in this article is given about the present government is using money bill, okay, procedure to pass various type of bills without discussion in the parliament. So it is a one of the question mark on government. Okay, how government make any private bill, any ordinary bill as a money bill, and it pass in the parliament without any without any discussion. Okay, so we'll discuss each and every aspect of this article in detail. Apart from this, in GS paper 2, in mains exam also there will be a question. Okay, as you know, in mains exam we have to study here polity. Okay, polity, constitution. So obviously there will be a question from money bill with respect to present government procedure. Okay, with how government use present enactment of any type of bill in parliament as a using a money bill. तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है. Okay, so let's understand each and every procedure in detail. तो ये आज का आर्टिकल है. ओके, हाउ एंड व्हेन कैन अ बिल डिफाइंड एज अ मनी बिल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज बिल. ओके, ये बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट? सो बिल इज जनरली वी डिफाइंड एज इट इज अ proposal फॉर legislation. इट इज अ proposal फॉर legislation. ओके, सो बिल जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल. ओके, एक होता है पब्लिक बिल. ओके, पब्लिक बिल. तो जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, प्राइवेट बिल होता है दैट कैन पास एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कैन पास प्राइवेट मेंबर बिल. और पब्लिक बिल विच इज ओनली पास बाय द मिनिस्टर. ओके, ओनली पास विद द मिनिस्टर. सो जो मनी बिल है इट इज अ पब्लिक बिल. ओके, मनी बिल क्या है? एक तरह का पब्लिक बिल है. So bill, it is a proposal for legislation that can start any one house of the parliament, either Raj Sabha और लोक सभा, दोनों में से किसी भी हाउस से वो इनिशिएट हो सकता है. और जब ये पास हो जाता है each and every house with the 5 stages, there is a 5 stages of passage of the bill, and final receive assent of the president. Okay, when it receive final assent of the president, then this bill become an act और लॉ. तभी वो एक्ट और लॉ बनता है. ठीक है, तो बिल क्या है? इट इज अ proposal फॉर legislation दैट स्टार्ट इन द पार्लियामेंट एंड इट बिकम एन एक्ट और लॉ वंस इज डुली इनेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल को लेकर स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है कि मनी बिल ओनली पास with respect to given in a Lok Sabha. Okay, Lok Sabha have more power as compared to Raj Sabha with respect to money bill. Okay, that's why government is using most of the bill, means categorize most of the bill as a money bill and pass in the parliament without any discussion. इस पूरे आर्टिकल में यही बात बताया गया है, क्या स्पेशल व्हाट इज मनी बिल एंड फाइनेंस बिल के बारे में बताया गया है, एंड व्हाट प्रोसीजर फॉर मनी बिल, प्रोसीजर क्या है, एंड व्हाट आर द इश्यूज. ईच एंड एवरी डायमेंशन को हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द first paragraph of this article. What is given in the first paragraph in this article? The Chief Justice of India, recently Chief Justice of India ने कहा has agreed to list before the constitutional benches the petition challenging the money bill route taken by the center to pass contentious law or amendment. मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दैट पिटिशन विल बी कंसिडर्ड एज सीरियस. ओके, क्योंकि अभी के गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हमेशा कोई भी ऐसे बिल है जो कंटेंशियस लॉ है जिसमें लॉट ऑफ डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, जिसमें हो सकता है कि ऑपोजिशन पार्टी विल काउज अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल और उसमें क्रिटिसाइज करने के चांसेस हैं, और ऐसे प्रोसीजर्स अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें काफी सारे डिस्कशन होने हैं. उन सारे बिल को सेंटर क्या कर रही है? एज अ मनी बिल डिक्लेयर कर दे रही है. और मनी बिल डिक्लेयर करने से क्या होता है, जैसे कि इसमें हमने जाना कि लोकसभा है मोर पावर, ओके, एज कम्पेयर टू राज्यसभा. तो लोकसभा में मतलब अभी का जो गवर्नमेंट है, मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट के जो सीट है, मेजोरिटी है इन लोकसभा. तो लोकसभा अगर अप्रूवल दे दे रहा है तो राज्यसभा दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट विल बिकम एन एक्ट. ओके, तो इसी के लिए पिटिशन डाला गया कि एंड इट्स आस्किंग क्वेश्चन कि क्या गवर्नमेंट जो अभी जो पाथ फॉलो कर रही है, जो
route taken by the government that create that make any ordinary bill as a money bill and pass in the parliament. तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। ओके, सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट डिफाइंस सर्टेन कैटेगरी ऑफ बिल दैट डील विद फाइनेंशियल मैटर एज अ मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो साफ साफ लिखा है कि फाइनेंशियल मैटर्स कोई भी ऐसा बिल है जिसमें फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात किया रहा है, टैक्सेशन हो, ओके, रेवेन्यू जनरेशन हो, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी डिपॉजिट करना हो, विड्रॉ करना हो, वे सारे बिल क्या कहलाएंगे? मनी बिल कहलाएंगे। ठीक है, सो आर्टिकल 110, ओके, इन मस्ट रिमेंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक अबाउट द मनी बिल। सो आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द मनी बिल, और उसमें जो प्रोविजन है ए टू एफ से लेकर जो भी बातें बताई गई है, मींस दिस आर द दिस टाइप ऑफ ना बिल इज कॉल्ड एज मनी बिल। ओके, defined as a money bill as a bill that contains only provision dealing with one or more six specific matter। okay, six specific matter दिए हैं और इसमें से only that will be considered as a money bill only when it contain any one of the matter mentioned in among the six specific matters। okay, क्या क्या है? जैसे कि इसमें है that relate to the taxation, टैक्सेशन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो इंटरनल इलेक्शन बोरिंग कर रही है, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मींस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट मनी विड्रॉ कर रही है, ओके, या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ कर रही है, पेमेंट कर रही है, मनी फ्रॉम सच फंड, दैट टाइप ऑफ बिल विल बी कॉल्ड एज मनी बिल। ऐसे कोई भी बिल है जिसमें फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात किया जा रहा है, अबाउट टैक्सेशन के बारे में, अबाउट बोरिंग के बारे में बात किया जा रहा है, गवर्नमेंट इज वांट टू बोरो मनी, ओके, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट अगर किसी तरह का फंड विड्रॉ करती है, दैट टाइप ऑफ बिल विल बी कॉल्ड एज मनी बिल। देन आल्सो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे बजट के समय में एवरी मिनिस्टर को कुछ फंड एलोकेट किया जाए, दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल इज पास। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, दैट लाइक मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे हैं जहां पर उनके सैलरीज अलाउंसेस दैट चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। then receipt on account of consolidated fund or public account of India or audit of account of union or state। मतलब इसमें साफ साफ बताया गया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, इन सारे मैटर में कभी भी किसी भी बिल में अगर इसका डिक्रीज करना हो, इंक्रीज करना हो या किसी तरह का भी एडिट करना हो, दैट विल बी कॉल्ड एज मनी बिल। ओके, सो दिस टाइप ऑफ बिल विल बी कॉल्ड एज मनी बिल, और इसमें कोई लॉ नहीं है, इसमें कोई नो नो ऑब्जेक्शन, ओके, देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनीबॉडी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि a law must contain any of the provisions that mentioned in six categories। okay, clause G जो है मनी आर्टिकल 110 का clause G है, that talk about it provided any matter incidental to this six matter can be classified as money bill। कोई भी ऐसा मैटर, एनी को वन मैटर फ्रॉम द गिवन सिक्स जो स्पेसिफिक मैटर्स मेंशन किए हैं, that will contain any one matter is called as money bill। okay, now the classic example of money bill like Finance Act, okay, and Appropriation Act that deal primarily only with taxation and spending out of the consolidated fund respectively। so Finance Act क्या है? that is talk about taxation से process है। then your कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई मनी विड्रॉ करते हैं, लाइक एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, एप्रोप्रिएशन एक्ट है दैट विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट टाइप ऑफ बिल इज कॉल्ड एज मनी बिल। इवन we talk about the finance bill also। so finance bill and money bill both are different। finance bill is like a no, it passed in the parliament like a ordinary bill, okay, and money bill required a special procedure। so article 117 talk about the two different category of financial bill। दो टाइप के फाइनेंशियल बिल होते हैं। फर्स्ट है इट कंटेन एनी ऑफ द सिक्स मैटर मेंशन आर्टिकल 110 ए टू 5 अलोंग विद एनी अदर मैटर। मतलब कि फाइनेंस बिल दो टाइप होता है। कैटेगरी वन जो होता है फाइनेंशियल बिल का, वो वैसा बिल होता है जो कि किसी कोई भी एक मैटर मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 110 का प्लस अदर मैटर्स के बारे में भी दिया गया है, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन। सेकेंड, bill that do not contain any of those six matter but would have involved expenditure from the consolidated fund of India। अगर कोई ऐसा बिल जो पार्लियामेंट में पास हो रहा है, ठीक है, दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी टू ऑफ फाइनेंशियल बिल दैट नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 110, बट उसमें ये बात बताएगी कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ विड्रॉइंग ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल कैटेगरी टू। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कि आर्टिकल 117 talk about financial bill, there are two type of financial bill। okay, now move ahead। दूसरा देखते हैं कि क्या इसमें और बताया गया। what procedure for a money bill, मनी बिल के लिए क्या प्रोसीज्योर दिया गया, why
गवर्नमेंट इज ना कैटेगराइजिंग एवरी टाइप ऑफ बिल एज अ मनी बिल। जो भी बिल ज्यादा डिस्कशन हो, ज्यादा डिबेट वाला हो, तो उसको मनी बिल बनाकर गवर्नमेंट इस तरह से क्यों उसको एक्ट बना देती है, बहुत ही जल्दी वो पार्लियामेंट में क्यों पास हो जाता है। तो व्हाट स्पेशल प्रोसीजर इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? So as per Article 109, a money bill shall be introduced only in the Lok Sabha, only, not in a Rajya Sabha. जैसे कि आपको पता है ऑर्डिनरी बिल जो होती है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस एनी वन हाउस, इधर इन द लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन मनी बिल होगा दैट विल बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। इट इज गिवन इन आवर आर्टिकल 109। So after it is passed in the Lok Sabha, the Rajya Sabha has only 14 days to provide its recommendation. Means once a bill is passed in a Lok Sabha, जब ये बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाती है तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का टाइम पीरियड रहता है। इन 14 डेज में राज्यसभा इसको पास करे, इसमें इसको अमेंडमेंट करे या इसके ऊपर डिस्कशन करे, सिर्फ 14 डेज के। 14 डेज के अंदर ये बिल वापस राज्यसभा को लोकसभा में भेजना है। अगर नहीं भेजता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिल पास इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट which may or may not be accepted by लोक सभा। अगर राज्यसभा कोई भी रिकमेंडेशन देता है, अमेंडमेंट करता है कि नहीं इस मनी बिल में ये प्रोविजन को हटाना चाहिए, इस प्रोविजन को ऐड करना चाहिए, उस रिकमेंडेशन को लोकसभा उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। दिस इज द व्हाट द पावर इज गिवन, स्पेशल पावर इज गिवन टू द लोकसभा विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। ठीक है, सो मनी बिल डील ओनली विद द फाइनेंशियल मैटर। यहाँ पर ओनली विद द फाइनेंशियल मैटर जो हम लोग देखा अबाउट द टैक्सेशन, बोरोइंग, ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, इन सारे मैटर में जब भी किसी बिल में जिक्र किया जाए तो उसको हम लोग मनी बिल कहेंगे। एंड आर क्रूशियल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइक बजट फॉर एक्सपेंडिचर फॉर डिफरेंट एरिया, डिफेंस सेक्टर की बात करें या आप पेंशन की बात करें, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में है कंट्री में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द स्पेशल प्रोसीजर दैट इफेक्टिवली रिक्वायर ओनली द अप्रूवल ऑफ द लोक सभा वेयर द रूलिंग गवर्नमेंट एंजॉय अ मेजोरिटी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल पावर सिर्फ लोकसभा को दिया है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी जो गवर्नमेंट जो बनाती है, मेजोरिटी पार्टी जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी होती है दैट मोर डोमिनेंट लोकसभा। तो लोकसभा विदाउट एनी डिले इन डिस्कशन और डिबेट की, वो राज्यसभा में फिर वही 5 स्टेज को फॉलो कर रही है, डिस्कशन और डिबेट हो रहा, तो उसमें क्या होगा, इट विल बी काउज अ लॉट ऑफ ना वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है दैट कैन बी easily, okay, that bill easily pass in the parliament without any delay। तो वही स्पेशल पावर किसको दिया गया, लोकसभा को। तो जो मनी बिल का ओरिजिन है ये कहां से हुआ, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, वेयर इन 1911 द पावर ऑफ अनइलेक्टेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ओवर द बजट वर curtailed। okay, so it was in 1911 when this okay, origin of this special power given to the Lok Sabha with respect to the money bill started। the budget was required to be passed only by the house of the common that reflect the will of the people। क्योंकि आपको पता है लोकसभा में जो भी एमपी होते हैं, ओके, वी चूज on the basis of universal adult suffrage, okay, people participate, people vote and they choose their own representative from their territorial constituencies। तो जितने भी लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं वो सारे कहीं ना कहीं चुने जाते हैं हमारे थ्रू, ओके, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो लोकसभा डायरेक्टली रिप्रेजेंट विल ऑफ द पीपल, ओके, दैट्स वाई एनी मैटर रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और बजट, जो कि आम जनता जिससे अफेक्टेड ज्यादा होती है, उन सारी चीजों को सबसे ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, लोकसभा के मेंबर होते हैं। एंड गवर्नमेंट इज, एज यू नो, इंडिया रिप्रेजेंट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे पास है। ओके, सो दैट एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। However, it must be noted that operative word of the definition of money bill is the word only। यहाँ पर सिर्फ वर्ड ओनली, मतलब कि जो भी 6 प्रोविजंस मेंशन किया 100 आर्टिकल 10 में, उसी अगर वो किसी न किसी बिल में अगर मेंशन किए गए हैं तभी वो बिल को मनी बिल कहा जाएगा, अदरवाइज दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज मनी बिल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि वेन एवर एनी मिनिस्टर, ओके, वन मोर थिंग, मिनिस्टर इज ओनली मीन्स अलाउड टू इंट्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ एनी बिल, ओके, मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट एनी प्राइवेट मेंबर, कोई नहीं अदर नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड देन स्पीकर विल, ओके, सेटिस्फाई, स्पीकर ऑफ द लोक सभा विल सर्टिफाई वेदर दैट बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो इस स्पीकर का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो स्पीकर बोलेगा हाँ ये मनी बिल है या नहीं, ये डिसीजन किसके हाथ में होता है, स्पीकर में। एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड हियर। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो इतना मतलब कि है कि स्पीकर उसको पहले तो एक अथॉरिटी प्रेसिडेंट देगा कि यस आप अलाउ करते हैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में। जब भी बिल इंट्रोड्यूस करना उसके पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
उसके बाद स्पीकर विल डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट. दैट फाइनल अप्रूवल गिवन बाय स्पीकर. इट इज द स्पीकर ऑफ द लोक सभा हु certify a bill to be a money bill or not. Okay. A financial bill category 1 and 2 do not enjoy this special procedure. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. ओके, ऑल द बेसिक आइडिया यहाँ पर ये है कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 and 2 दैट टॉक अबाउट ओके मनी विड्रॉइंग फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट इट नॉट पासेस विद द सेम वे एज द मनी बिल. मनी बिल की तरह इसका स्पेशल पावर मैंने लोकसभा इज नॉट ओनली एंजॉय स्पेशल पावर. राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकता है. ओके, बोथ शुड बी अ पास. और जब भी मनी बिल विल बी वंस मनी बिल विल पास टू गिवन टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, प्रेसिडेंट नॉट अलाउड टू रिटर्न द बिल. प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो बिल को रिटर्न करे. ऑल्दो इट विल होल्ड और विड्रॉ, ओके, होल्ड कर सकता है बिल को, अपना वेटो पावर यूज कर सकता है, बट प्रेसिडेंट इज नॉट अलाउड टू ओके रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन द लोकसभा. क्योंकि होता है क्या कि प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट. इसलिए जनरली केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट हमेशा अपना अप्रूवल दे देते हैं. ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल का. अभी जो इशू है वो क्या चल रहा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मोस्ट द कंटेंशियस और डिबेटेबल जो भी टॉपिक वाले बिल हैं दैट ऑलवेज फॉलो ना मनी बिल रूट, एंड वो राज्यसभा में डिस्कशन होता नहीं है, डायरेक्टली पास इन द लोकसभा. सो सर्टिफिकेशन ऑफ बिल एज अ मनी बिल बाय द स्पीकर केम अंडर जुडिशियल रिव्यू. ओके, जुडिशियल रिव्यू क्या मतलब कि स्पीकर अगर किसी बिल को मनी बिल कहता है, दैट कम अंडर जुडिशियल रिव्यू फॉर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द आधार एक्ट पास्ड इन 2016. सो आज आपको पता है गवर्नमेंट आधार एक्ट 2016 में एक बिल पास की थी, एंड दैट बिल इज कंसिडर्ड एज अ मनी बिल. उसको मनी बिल डिक्लेयर करके किया था, क्योंकि आधार एक्ट में ऐसा कोई मनी विड्रॉ करने की बात नहीं की जा रही है, इसमें कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है. बेसिकली आधार इज अबाउट दी ओके आपको डेमोग्राफिक आइडेंटिटी को, जो डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करना है, सो दैट पीपल ऑफ इंडिया एबल टू एंजॉय गवर्नमेंट स्कीम्स. जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, मिड डे मील स्कीम हो चाहे नरेगा हो, इस सारे चीज़ों को यहाँ के लोग उस चीज़ को लाभ उठा सके. दैट्स वाई गवर्नमेंट स्टार्टेड आधार एक्ट. मीन्स इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, जिसका आपको बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीबडी. तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क उठ गया कि क्या गवर्नमेंट इन सारे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है, तो उसका स्टोरेज प्रॉपर वे में हो रहा है, वेदर गवर्नमेंट इज वॉलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल और नॉट. तो इसमें बहुत सारे डिबेट हुए. जब आधार एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ने जब मैंडेटरी कर दिया कि इफ एनी वन वांट टू एंजॉय एनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स बेनिफिट, और मैंडेटरी कर दिया बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कि दिस इज रिक्वायर्ड आधार एंड योर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यू हैव टू शेयर विद द गवर्नमेंट. तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि राइट टू प्राइवेसी के, क्या हमारा राइट टू प्राइवेसी सिक्योर रहेगा ड्यूरिंग आधार एक्ट और नॉट. तो उसमें लॉट ऑफ डिबेट हुआ, लॉट ऑफ डिस्कशन हुआ उसमें. ठीक है, काफी उस बिल को पास करने में दिक्कत आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसे एज अ मनी बिल डिक्लेयर करके लोकसभा में पास किया. तो उसी समय क्या स्पीकर के ऊपर डिसीजन की वेदर स्पीकर डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट इज कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू मतलब हो गया कि ना जुडिशरी विल सी, अपने एंगल से देखेगा क्या ये बिल सही में मनी बिल था या नहीं. Now, this law contained provision with respect to process for enrollment and authentication, establishment of authority for Aadhaar, mechanism for safeguard and penalty for offences under the Act. इन सारे एक्ट में ये बता कि ऑथेंटिकेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बेनिफिशरीज कौन रहेंगे. Now, Section 7 of the Aadhaar Act provide that central state government may require Aadhaar authentication of an individual as a condition of providing subsidy, benefit or service for which expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India. मतलब कि जब भी गवर्नमेंट किसी किसान को या वीकर सेक्शन सोसाइटी है, जैसे पॉवर्टी खत्म करने के लिए कोई सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, फॉर एग्जांपल पहल स्कीम आया था एलपीजी के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी, केरोसिन ऑयल के लिए सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से, दैट मनी गवर्नमेंट ऑब्वियसली विड्रॉ फ्रॉम दी कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया. इसी के लिए उन्होंने इस बिल को मनी बिल एज अ डिक्लेयर किया था कि ये मनी बिल है, क्योंकि इसमें मनी विड्रॉ किया जा रहा है कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया से फॉर प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट, ओके, सब्सिडी टू बेनिफिशरी ऑफ द कंट्री. और उस केस में उनका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होना गवर्नमेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटिंग द विड्रॉल ऑफ द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड एज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्ट. उन्होंने कहा कि वी आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड ऑफ इंडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना पार्ट ऑफ दिस बिल. दैट्स व्हाई दिस बिल इज कंसिडर्ड एज अ मनी बिल. वेल दिस वाज डिबेटेबल क्लासिफिकेशन. वो बहुत बड़ा डिबेटेबल क्लासिफिकेशन. अगर मनी बिल है तो इसका मतलब है कि वेदर इंडिविजुअल्स बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन विल बी सिक्योर और सेफेस्ट प्लेस और नॉट. क्या गवर्नमेंट इस चीज की गारंटी ले रही है कि वो
उसका मिसयूज ना होगा, उसका मिसयूज ना हो अभी, क्योंकि अभी आर शेयरिंग आवर ना फिंगर का आप दे रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, रेटिना स्कैन करके दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर योर बायोलॉजिकल बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो दैट विल बी सिक्योर और नॉट। So this was data debatable classification. Supreme Court upheld this as a majority of 4:1. Okay, Supreme Court ने इसको upheld किया था by because of 5 benches का constitution हुआ था, जिसमें कि 5 bench will decide whether this bill is a money bill or not. उसमें 4 judges ने कहा yes it is what government is right here. Okay, it should be considered as a money bill, तभी जाके हम withdraw करके money उन subsidies में provide कर सकते हैं. But the current Chief Justice of India was the lone dissenting judge who held that Aadhaar Act did not fulfill the definition of money bill. जो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कहते हैं कि जो आधार एक्ट था दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मनी बिल, उसको पूरी तरह से मनी बिल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अदर प्रोविजंस भी आ रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 की कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज इट्स सेइंग दैट विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया प्लस अदर मैटर्स भी हैं, अदर मैटर इंक्लूड लाइक सब्सिडीज प्रोवाइड करना, वेलफेयर स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस कम अंडर द फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 and finance bill category 2, then it should be also the part of discussion in Rajya Sabha. राज्य सभा को भी इसको डिस्कशन करना चाहिए, राज्य सभा भी पूरी तरह से हक है राज्य सभा को भी इसमें अमेंडमेंट करे, ठीक है, वो अपना राय बताए, ओके कि हाँ ये दिस टाइप ऑफ बिल शुड आल्सो इंक्लूड दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी शुड बी गिवन और नॉट, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट 2017 उसमें पास हुआ, was even more controversial. एक साल बाद फाइनेंस एक्ट 2017 पास हुआ, इवन मोर कंट्रोवर्शियल इन पासिंग अमेंडमेंट टू वेरियस एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल सच एज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एज अ मनी बिल। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी एज अ मनी बिल डिक्लेयर कर दिया गया। दिस अमेंडमेंट वर स्ट्रक डाउन बाय रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, where 5 judge bench opined that Aadhaar case judgment did not substantially discuss the effect of the word only in the definition of money bill. It refers the matter of larger bench for consideration. So Roger मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक 2019 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मनी आधार एक्ट जो है दैट नॉट ओनली कंटेन अ प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 110, इसलिए इसको मनी बिल नहीं कह सकते। मनी बिल है यानी इसको फिर हायर बेंचेस, ओके, मोर हायर बेंचेस, लार्ज बेंच लाइक 7 जजेस और 9 जजेस का जो बेंच होता है दैट विल बी डिसाइड। So a 7 bench judge should be considered for an authoritative judgment of the definition of money bill. Okay, 7 judge bench होना चाहिए that decide whether Aadhaar Act should be the part of money bill or not. Okay, and the speaker should also uphold the spirit of definition certifying the money bill. और साथ में ये भी कहा गया कि speaker, always speaker, because speaker is the have a power to certify whether the bill is money bill or not. That should be also considered each while considering while categorizing any type of bill as a money bill by keeping all the points of article 110 in his mind. Okay, अब जब भी किसी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना है तो उसको सारे प्रोविजन को देखते हुए दैट बिल शुड बी कंसिडर एज अ मनी बिल। ओके, so this is what is given in today's this article. I hope this article will help you to understand about the money bill, procedure of the money bill, and why it is in a point of discussion in today's newspaper. Okay, so if you like this video, please subscribe this channel, and we will update with you more videos. Okay, thank you everybody.